ओम साई राम दोस्तों। आज जो दिन है बहुत ही शुभ शुभ दिन है और ये दिन है 15 मार्च 2024। तो देखते हैं आज का जो विजडम है ना बाबा का वो क्या आया है। तो 3-4 दिन थोड़ा सा मेरे चैनल पे रीडिंग्स मैं नहीं कर पाई थी ड्यू टू पर्सनल रीजंस। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आज की जो रीडिंग है उसको ध्यान से देखें। तो आज की जो रीडिंग है बाबा की वो है डू नॉट डाउट, नेवर डाउट द पावर ऑफ बाबा, हैव फेथ। अब दोस्तों क्या है ना, ये जो लड़ाई है सिर्फ दो चीज़ों में चल रही है। एक है फेथ और एक है फियर। तो जो फेथ है उसका पलड़ा जो है वो हमेशा फियर के आगे कभी कभी हल्का पड़ता रहता है, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो बाबा ने कहा डू नॉट डाउट, नेवर डाउट द पावर ऑफ बाबा, हैव फेथ। अब हम ये स्टोरी सुनते हैं। दिस इज अ स्टोरी ऑफ हाउ दाजी साहिब पटवर्धन, who was a doubting Thomas, turned into an ardent devotee. Once a dear friend of Daji's asked him to accompany him to Shirdi as he wished to meet the great saint Sai Baba. Daji was disinclined to go as he heard that Sai Baba was a Muslim fakir who had numerous Hindu followers. These followers, according to what Daji had heard, were mostly Brahmins, and Baba had cast a magical spell on them and had drawn them towards him. He had heard that Baba stayed in a dilapidated mosque, begged alms, and had a Tulsi Vrindavan in the mosque. But what troubled him the most was that people actually believed that Baba had lit lamps with water, so he decided to see all for himself. Daji decided that he would test Baba and prove that he was a charlatan. In May 1914, Daji set out to Shirdi. It was a very long and tedious journey, and by the time he reached, Daji was thoroughly tired and his clothes were dirty. He wished he could have had a bath and put on a fresh set of clothes. With this thought in his mind, he exited the railway station. There was a huge well near the station, but it was very deep, about 60 feet deep. Daji looked into the well, and the clear, cold water was enticing. At that time, Daji was a strong young man, 20 years old, and an expert swimmer. Without giving much thought to it, he jumped into the well. Daji found that he was sinking and desperately thrashed his hands about. But the more he struggled, the deeper he sank. In desperation, he struggled to come up and take a breath, but to no avail. He now realized that he would soon lose his life as he was drowning. At that very moment, he thought of Sai Baba and silently prayed, Baba, I came to test you, and now you taught me a great lesson. Now, without meeting you, you are sending me to heaven. I have recently got married. I don't even have children yet. My wife will become a young widow. At least consider that and save my life. If you save my life, I will worship you with devotion for the rest of my life. As soon as Daji said this, he found himself standing on the ledge of stone, which prevented him from sinking deeper. Then, taking the aid of the rim of the well, he slowly came up. The villagers gathered there, helped him, pulled him out to safety. Daji joined hands together and thanked Baba for saving his life. Then he took a tonga and proceeded to Shirdi. As soon as Daji entered Dwarka, my Baba greeted him. Are Brahman, at least now do you have faith? बहुत ही खूबसूरत कहानी है दोस्तों। मैं थोड़ा सा इसका बता देती हूँ आपको हिंदी में। एक दाजी नाम के एक व्यक्ति थे, दाजी साहेब पटवर्धन, जो कि हमेशा शक डाउटिंग थॉमस यानी हमेशा शक करते थे, तो बहुत शक्की थे। तो वो कैसे बाबा के भक्त बने। एक दिन एक दाजी के जो एक दोस्त थे उन्होंने कहा कि भाई शिरडी चलो, मैं जा रहा हूँ साईं बाबा के दर्शन को। अब दाजी जो थे वो उनका कोई मन नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि जो बाबा हैं वो मुसलमान हैं और उनके बहुत सारे हिंदू भक्त हैं। तो ये जो भक्त हैं, ये दादी ने सुन रखा था, ये तो ब्राह्मण ही थे और बाबा ने उनके ऊपर कोई ऐसा जादू कर रखा था कि वो उनकी तरफ आ गए थे। उन्होंने ये भी सुना था कि बाबा एक बहुत ही टूटी फूटी मज़ार में रहते थे और भिक्षा लेते थे। उनके पास एक तुलसी का पौधा भी था उनके मज़ार में। लेकिन उनको सबसे ज़्यादा किस चीज़ से तकलीफ़ हुई कि बाबा एक्चुअली जब अपने दिए जलाते थे पानी से, तो लोग उसको मानते थे। तो उसको लगा दाजी को कि चलो मैं जाके देखता हूँ कि बाबा वाकई में कुछ करते हैं, ऐसा कोई चमत्कारी संत है या कोई ढोंगी हैं। तो मई 1914 में दाजी गए शिरडी, और बहुत ही लंबी और बहुत ही थकान वाली एक यात्रा थी। और जब तक दाजी पहुँचे शिरडी, उनके जो कपड़े थे वो बिल्कुल ही गंदे हो चुके थे। तो उनको लगा कि काश वो कम से कम नहा धो लेते और कुछ नए अच्छे ताज़े कपड़े पहनते। और ये कहते हुए वो मतलब ये सोचते हुए वो निकले
रेलवे स्टेशन से। अब रेलवे स्टेशन के पास एक बहुत ही गहरा, मतलब आप सोचिए 60 फीट नीचे एकदम गहरा कुआं था, और दादी ने देखा कुएं में बड़ा अच्छा सुंदर सा पानी था, ठंडा ठंडा, और उनको बड़ा मज़ा आया। उनको लगा कि अभी तो मैं 20 साल का ही हूँ, और बड़े स्ट्रांग थे वो और बड़े अच्छे तैराक भी थे, तो उन्होंने फटाफट से अपने कुएं में कूद गए। और जैसे ही वो कुएं में कूदे तो उनको लगा कि उनके जो हाथ हैं वो बिल्कुल नीचे जा रहे हैं, और उनके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो गए। वो बिल्कुल ऐसा लगा वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कुएं में वो डूबते जा रहे हैं, और वो बड़े डर गए, क्योंकि उनको लगा कि मैं जितना मैं ऊपर आने की कोशिश करता हूँ, हाथ पैर मारता हूँ, उतना ही मैं नीचे जा रहा हूँ। तो इसी समय क्या हुआ, दादी को समझ में आया कि मैंने बहुत गलत काम किया साईं बाबा पर शक करके। तो उन्होंने फिर उसी वक्त बाबा के बारे में सोचा, और उन्होंने बहुत ही हल्के से उन्होंने प्रार्थना की, और उन्होंने बाबा से कहा, बाबा मैं तो आपकी परीक्षा लेने आया था, और आपने मुझे बहुत अच्छा सबक पढ़ाया, और अभी भी शादी हुई है, मेरे तो बच्चे भी नहीं है, तो जो मेरी पत्नी है वो तो अभी सी विधवा हो जाएंगी, कम से कम उसको प्लीज़ सोचिए और मेरे प्राण बख्श दीजिए। अगर आप मेरे प्राण बख्शेंगे तो मैं आपकी ज़िंदगी भर आपका भक्त बना रहूँगा। जैसे ही दाजी ने कहा, उन्होंने देखा कि वो अपने आप को, उन्होंने पाया कि वो एक पत्थर पर खड़े हुए थे, और उस पत्थर की वजह से वो और ज़्यादा डूबे नहीं, और उस पत्थर की मदद से वो ऊपर आए, और धीरे धीरे उन्होंने सारा जो भी अपना जो कुएं से बाहर लेकर आए उनको, और फिर वो शिरडी गए जब, तो उन्होंने एक मतलब टांगे से वो लोग शिरडी गए और अपने दोस्त के साथ। और जैसे ही वो द्वारका माई गए तो बाबा ने उनको क्या कहते हुए संबोधित किया कि अरे ब्राह्मण, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया। तो देखिए ये ऐसा होता है कि जो हमारे भक्त होते हैं, जैसे मैं भी अभी आज ही मैंने अपनी रीडिंग्स में भी एक कुछ डाउट से रिलेटेड कुछ बोला था, तो हमारा जो डाउट होता है ना वो हमेशा रहता है दोस्तों। डाउट इसलिए रहता है, इतनी मुसीबतें आ जाती हैं तो हम थोड़ा सा फेथ रखने की कोशिश करते हैं, फिर कोई मुसीबत आती है, फिर हमें लगता है होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर कुछ बुरा हो गया तो, अगर हम फेल हो गए तो, अगर हम ऐसा धोखा हो गया तो, अगर हम बीमार हो गए तो, अगर हम लाचार हो गए तो, अगर हम पीड़ित हो गए तो, मतलब दुनिया भर के अगर 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 अगर। तो भगवान के जो दर होता है उसमें ना अगर होता है ना मगर होता है, उसमें सिर्फ भगवान के चरणों में सिर्फ विश्वास होता है। और दूसरों की जो विश्वास है ना दृढ़ भी तभी हो पाता है जब भगवान का आशीर्वाद होता है। अगर हम ये कहें कि अरे मैं हम तो बहुत दृढ़ विश्वास है हमारा भगवान के ऊपर, ऐसा भी शायद एक अहंकार ही होगा, क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी उनके ऊपर हम विश्वास हमारा कभी भी दृढ़ नहीं होगा। हम जिंदगी भर भटकते रहेंगे, डोलते रहेंगे, कभी हाँ कभी ना, ऐसी स्थितियों में रहेंगे। तो आज हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं दोस्तों, सब लोग मिलकर, कि बाबा अपने चरणों में जो हमारा विश्वास है उसको दृढ़ कीजिए, अपने गुरु जी के चरणों में, अपने ईश्वर के चरणों में, हमारी माता रानी के चरणों में, जिनको भी हम मानते हैं, चाहे देवी हो चाहे देवता हो, जिस भी ईश्वर के स्वरूप को हम मानते हैं सभी एक ही हैं। तो हमें ये भी डाउट नहीं करना चाहिए कि अरे हम इनको मानते हैं तो वो गुस्सा हो जाएंगे, उनको मानेंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये सारी शक्तियाँ एक ही होती हैं, और इस समय समय पर ये निश्चित करती हैं कि हम उनके किस रूप को माने। तो इसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं होता कि हम इनको माने तो वो गुस्सा होंगे, वो नहीं, कोई गुस्सा नहीं होता, सब एक ही हैं। ठीक है। तो हमें बस उनके चरणों में हमें प्रगाढ़ अपनी भक्ति रखनी है, और कोशिश करनी है हमें कि हमारा जो विश्वास है, और हमें ईश्वर से ही सहायता मांगने है कि ईश्वर हम आपसे प्रेम करना चाहते हैं, हम आपसे डरना नहीं चाहते, हम आपकी संतान हैं प्रभु। तो हमें प्लीज़ हमारा बेड़ा पार लगाएं, हमारे विश्वास को स्थिर करें, हमारे मन में जो छोटे छोटे लालच आ जाते हैं उनसे हमें मुक्ति दें। जो गलत गलत चीज़ें हमारी हैं, जो सोच में चलती आ रही हैं, पता नहीं कितने जन्मों जन्मों से हमारी गलत सोच है, उससे हमें मुक्ति दें प्रभु, और हमारा जो विश्वास है उसको बिल्कुल स्थिर बनाएं। तो यही इसी रीडिंग पर मैं अलका शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। कल मैं आऊँगी एक बहुत ही सुंदर रीडिंग साईं बाबा की लेकर, और कृपा करें, दया करें साईं हम सब पर, और जो भी लाचार हों, जो भी बीमार हों, जो भी इस वक्त अस्पतालों में हों, जिनके घर में दरिद्रता हो, जो भी किसी प्रकार की टेंशन से ग्रसित हो, या छोटी छोटी चीज़ों पे ग्रह क्लेश हो रहा हो, या कोई भी इस टाइप की सोच से पीड़ित हो अपनी, उन सब से मुक्ति कीजिए। हमें विश्वास हमारा जो है वो स्थिर कीजिए, डाउट्स से और फियर्स से हमें मुक्ति दीजिए, क्रोध से हमें मुक्ति दीजिए बाबा। थैंक यू सो मच। रोगों से भी मुक्ति दीजिए। थैंक यू सो मच। दिस इज़ अलका शर्मा फ्रॉम न्यू दिल्ली। ओम साई राम।